23 for 3. Change of stride, they will get 1 for that, they got 2, and that's 4. Little bit of misfielding and resulted in the 4 into third man region. He made it with his shot fine leg, but in the third man region they got 4 for that. This is well connected, well taken. No, dropped. So they got 2 runs for that effort. We are in the third over. The scorecard is 29 for 3. 29 for 3. Just a single. So after 3 was the scorecard, it is 30 for 3. Good piece of bowling by so far by Betul Yudha. They have contained an average of 10 runs per over for Bhumi Purush Palolem. So Harish will bowl the 4th over for Betul Yudha. 30 for 3 is the Bhumi Purush scorecard after 3 overs. Harish. Harish will bowl the 4th over for Betul Yudha. He's a left-hander. He moved his, I think, 5 leg field, hold on leg stump. Yeah, when you're bowling round a wicket, the good line to keep is somewhere near the off stump or away from the off stump. But when you pitch on leg and middle, just a single. 35 for 3. We are in the 4th over.
Try to hit it reverse. The leg, and will get a leg by for that. Good piece of bowling by Harish. At this juncture, Betule Da have superb command over this match. 36 for 3. You time it well? Yeah, timed for 6. He waited for that and smack it over long off. 42 for 3. 42 for 3. He has done it again. A helicopter shot. 48 for 3. Oh, this man is in a hurry. 3 consecutive sixes. 54 for 3 after 4. Suddenly the course of match is drifted from Betule Da to Bhumi Purushpalolem after these 3 massive sixes. So we're gonna bowl the last over for Betule Da. Oh, Suprasad will bowling against his home team. Can Prasad spin his web around Nilesh? Because they know they definitely know each other from. Or will they will go continue that onslaught from the last overs? Is miscued it, but will get. I think he want to give the strike to Surendra, who already had 3 sixes to his credit in last over.
55 for 3. Bable shuffling his fielders. Yeah, he waited and he know Prasad bowling, so he waited and smacked him over cover region. So great going for Surendra. 4 sixes in 4 balls. And that could be the no, that's a 4. 65 for 3. Huh? Why 65? 65 for 3. A sudden turnaround from Bhumi Purush Palolem. Run out. We are in the last over. They will get single for that. They're going for the second one. Yeah. No. 67. Just a single. Good piece of bowling by Prasad. Look like a Yorker. So after 5 was the scorecard, did 67 for, sorry, 68. 68 for 5. 69 is the target for Betuludda. I request the captain of Kunde. Nue Heartbreaker and AS Mangan. The captain. Okay. No, अजून झालं ना तो. So Surendra has contributed 43 runs from
14 delivery with help of four sixes and three fours. बाप संदीप माश येता मेरे साथी कमेंटेटर संदीप प्लीज वैभव वैभव Captain of AS Mangan and Nuya Heartbreakers. Please come for the toss. दोन्ही कॅप्टनला लागी मागता प्लेइंग लिस्ट घेऊन टॉसी खातीर येवचे. हार्टब्रेकर नुये वर्सेस AS मणगण. धन्यवाद शेखर. भोजन के बाद फिर एक बार हम यहाँ उपस्थित हो गए हैं. पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम ने 68 रन बनाए हैं और 69 रनों का लक्ष्य जीत के लिए दिया गया है. 69
का लक्ष्य पार करने के लिए आए हैं कुनेश, और कुनेश के साथ धर्मेश। कुनेश, दैवेश, माफ कीजिएगा, दैवेश आए हैं। दैवेश और धर्मेश बल्लेबाजी का आरंभ करने के लिए आ गए हैं। पहली गेंद स्क्वायर कट के रूप में दैवेश ने मोड़ा जरूर है, पॉइंट के क्षेत्र से गेंद बाउंड्री की ओर जाती हुई, और पहला रन तो काफी तेजी से लेने की कोशिश की गई थी और दूसरा रन लेने की कोशिश में गिर गए दैवेश। एक ही रन पर संतुष्ट हो गए और इस प्रकार से पहला रन जुड़ता हुआ जीत का लक्ष्य 69 रनों का, 69 रनों का लक्ष्य दिया गया है पूरे 30 गेंदों में। करीब करीब 14, हर एक ओवर में रन जोड़ना जरूरी है। रिक्वायर्ड रन रेट 14 की है। और फिर एक बार करारा प्रहार स्क्वायर कट के रूप में धर्मेश की ओर से 4 रनों के लिए पहला चौका इस इनिंग में आता हुआ, और 4 रनों के सहारे टोटल हो गई है 5 रन, जबकि जीत का लक्ष्य 69 रनों का। रिवर एंड से पहली ओवर जारी है, गेंदबाज 12। जमीन के सहारे खेला जरूर है, मिड ऑफ के क्षेत्र में सिंगल चुराया गया, विद सिंगल टोटल गोस टू, धीरे धीरे आगे जाने की कोशिश करता हुआ टोटल बन गई है 6 रन, जबकि जीत की मंजिल काफी दूर है। 69 रन जरूरी है जीत के लिए, जबकि पहली ओवर प्रगति पर चल रही है, समापन की ओर झुकती हुई साफ नजर दिखाई दे रही है। शानदार फिटेड गेंद थी ये दैवेश के लिए। दैवेश आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे और गेंद के भी संपर्क नहीं हो पाए, विकेटों के पीछे बढ़िया कलेक्शन बगैर किसी रन के, और इस प्रकार से पहली गेंद डॉट के तौर पर गेंद चली गई है। फुल टच पे ट्राई किया है, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र से गेंद जाती हुई बाउंड्री की ओर, बाउंड्री पार कर गई है। जैसे ही मिला मौका, ये 4 रन, 4 के सहारे टोटल गई है 10 रनों पे, जबकि पहली ओवर की समाप्ति, हर एक ओवर में 14 रन जोड़ना जरूरी थे। 10 से शुरुआत हो तो जरूर गई है, लेकिन अब बचे हुए 4 ओवर में 59 रन जरूरी है जीत के लिए। करीब करीब 15 की औसत आ गई है। हर एक ओवर में 15-15 रन जोड़कर जीत की ओर कदम डालना जरूरी है। अखिल गोवा पागी समाज संगठन की ओर से शानदार यह प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है। उसके बाद कल का दिन रेस्ट दिन 28, 29, 30 और 3 दिन होंगे इस प्रतियोगिता के। दूसरी ओवर शुरुआत करने के लिए आए हैं गेंदबाज निखिल। शानदार गेंद, थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर रखने की कोशिश और सीधी गेंद चली गई कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के। 23 गेंदें, 59 रन जरूरी है जीत के लिए। पहले मैच में 80 रन बनाए गए थे, उसके बाद 88
और इस बार हल्का सा पुश किया धर्मेश ने सिंगल के लिए। विद द सिंगल टोटल गोज टू 11। 58 और रन जरूरी बचे हुए 22 गेंदों में। देवेश गेंदबाज का सामना करने के लिए तैयार। बेहतरीन गेंद थी ये, शायद स्क्वायर कट का एक मौका जरूर मिला था लेकिन कर नहीं पाए देवेश। और फिर एक बार डॉट के तौर पर गेंद चली गई है। 11 रनों पे स्कोर रुका हुआ। 21 गेंदें अभी भी शेष है। 58 और रन जरूरी है जीत के लिए। भूमि पुरुष टीम ने शानदार रन जोड़े थे 68 और 69 रनों का लक्ष्य दिया गया है जीत के लिए। बड़ा स्ट्रोक छोड़ दी गई हवाई में 6 रनों के लिए। छक्के के सहारे टोटल 6 रनों से बढ़ती हुई टोटल हो गई है 17 रन, जबकि जीत का लक्ष्य 69 रनों का 69 रन जरूरी है जीत के लिए। 17 रनों से हल होता हुआ 42 माफ कीजिएगा 52 और रन जरूरी है जीत के लिए। 20 गेंदें शेष। फिर एक बार जमीन के सहारे खेला जरूर है, तेज खेला गया था। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्ड होती हुई गेंद, तब तक सिंगल देवेश द्वारा। सिंगल के सहारे टोटल 18 रनों पे अभी भी 51 और रन जरूरी जीत के लिए। आखिरी गेंद दूसरे ओवर की। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद। अंपायर कोरगांवकर ने वाइड घोषित किया इस गेंद को। अतिरिक्त रन के सहारे टोटल गई है 19 रनों पे। फिर एक बार करारा प्रहार मिड विकेट के क्षेत्र में जमीन के सहारे कारपेट के सहारे खेला गया, फील्ड होती हुई कोई रन की गुंजाइश नहीं। रन तो एक सिंगल प्राप्त जरूर कर चुके हैं बल्लेबाज। सिंगल के जरिए टोटल हो गई है 20 रन, जबकि दूसरी ओवर समाप्त। 10-10 रन हर एक ओवर में, टोटल 20 रन। अभी भी जीत की मंजिल काफी दूर है। 49 रन जरूरी है बचे हुए 18 गेंदों में। काफी कमेंटेटरों का नाम मैं यहां से जिक्र कर चुका हूं, उनमें से एक नाम रह गया है, मेरे बेहतरीन अजीज दोस्त प्रवीण देसाई। शानदार काफी सालों से प्रवीण देसाई ने गुजारे हैं, काफी गोवा में घूमे हैं कॉमेंट्री के लिए प्रवीण देसाई। दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 20 रन। औसत में गिरावट थोड़ी सी जरूर आ गई है। 14 की औसत थी पहले ओवर की शुरुआती पे, वहां पहले ओवर में 10 रन और दूसरे ओवर में फिर एक बार अब 16.5 के औसत के जरिए ये रन जीत के लिए पार करना है। 49 रन जरूरी है जीत के लिए 18 गेंदों में। बड़ा स्ट्रोक हवा में तैरता हुआ और गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन पार करती हुई। धर्मेश का बल्ला काफी तेजी से चला और 6 रन अपने टीम के लिए दे दिए।
छक्के के सहारे टोटल हो गई है 26। काफी समाज बांधव दर्शक के रूप में यहां आ गए हैं। सभी का हार्दिक स्वागत अखिल गोवा छतरी पागी समाज संगठन की ओर से। कानकोण के इतर प्रेक्षक यहां आ गए, उनका भी हार्दिक स्वागत। वाइड के जरिए अतिरिक्त रन के सहारे टोटल 27 रन, जबकि तीसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई अंकेश द्वारा पेशे से तो ये पुलिस है, लेकिन गेंदबाजी का भार संभालते हुए अंकेश बल्ले की बाहरी हिस्सा लेकर गेंद आई है शॉर्ट हैंडमैन पे। जब तक शॉर्ट हैंडमैन आके गेंद को गैदर करे, थ्रो करे, तब तक सिंगल चुराने का मौका। सिंगल के जरिए टोटल गई है 28 रनों पे। रोहित पागी विकेटों के पीछे, हमारे अच्छे दोस्त है, बिल्कुल बेहतरीन दोस्त है रोहित पागी। बैंक में कर्मचारी है, विकेट कीपिंग का काम कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करते हैं ये। और इस बार फाइड लेग के खिलाड़ी ने क्या छोड़ी, बीटेश थे ये खिलाड़ी। बीटेश पागी की ओर से कैच छूट गई है। जीवनदान के सहारे एक सिंगल यहां जुड़ता हुआ, सिंगल के सहारे टोटल हो गई है 29। अभी भी 40 और रन जरूरी है जीत के लिए। पंद्रह गेंदें शेष और 40 रन जरूरी जीत के लिए। कैचेस विन द मैचेस कहा करते हैं, और इस बीच यहां कैच छूट गई है। उनतीस रनों का योगदान अब तक दे चुके हैं बल्लेबाज। काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, फिर एक बार अंपायर वाइड दे चुके हैं। एक्स्ट्रा रन के सहारे टोटल गई है 30 रनों पे। 39 रन जरूरी है जीत के लिए। 15 गेंदें शेष। अच्छी गेंदबाजी में वापसी करते हुए अंकेश, डॉट के तौर पर गेंद चली गई है। शानदार टीमों का भरना, लिलाव के तौर पर खिलाड़ियों का लिलाव हो गया था इस प्रतियोगिता के लिए हर टीम में। और ये हाथ से कैच पकड़ी गई है। इसी कैच हमने वस्त्र पेडनेकर के द्वारा लपकी गई देखी थी, उसी प्रकार की ये कैच एक हाथ से लपक लिया विकेटों के पीछे रोहित पागी ने, और चलता गया धर्मेश को डगआउट में। सर्वानंद बॉल लास्ट बॉल टू गो। बाबलेश आए हैं नए बल्लेबाज, बाबलेश पागी। शानदार, एक जमाने में बेहतरीन बल्लेबाजी किया करते थे, काफी बार विलायत में रह चुके हैं ये। इसके कारण थोड़ी सी वंचित बल्लेबाजी में, फिलहाल हम आशा करते हैं कि अच्छी बल्लेबाजी इनकी ओर से हो जाए। बढ़िया स्क्वायर कट, लाजवाब स्क्वायर कट, खेला तो गया है पॉइंट के क्षेत्र से, दुगनी जोड़ी गई है बबलेश द्वारा। दुक्की के सहारे टोटल हो गई है 32, जबकि जीत की मंजिल अभी भी काफी दूर है। 37 रन और जरूरी है जीत के लिए, 37 और रन जरूरी है जीत के लिए 12 गेंदों में।
टेनिस क्रिकेट में 5 ओवर के कोटे में इसी ग्राउंड पर हमने 107 108 रन भी देखे हैं, लेकिन यहां जीत के लिए 12 गेंदें शेष है और 37 रन जरूरी है जीत के लिए। पहले मैच में 80 रन बनाए थे और 80 रन बनाने वाली टीम जीत गई थी। उसके बाद 60 रन चेस किए गए थे, उसके बाद 88 रनों की बौछार की गई थी, वो चेस नहीं कर पाई थी। और उसके बाद काफी मैचेस होना भी है और हो भी गए हैं इस प्रतियोगिता में, इस श्रृंखला में। अब जीत 37 रनों की, 37 रन जरूरी है, 12 गेंदें। आक्रामक रवैये की बल्लेबाजी करना जरूरी है बल्लेबाजों को, बाबलेश को खासकर खेलना जरूरी है। दैवेश उनका साथ दे रहे हैं। फाइन खेला है बाबलेश ने, गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। दैवेश ने खेला था ये स्ट्रोक, माफ कीजिएगा। 4 रनों के सहारे टोटल हो गई है 36 रन। लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का। अतिरिक्त रन के सहारे टोटल हो गए 37। 32 और रन जरूरी है जीत के लिए। नीलेश आए हैं गेंदबाज का भार संभालने के लिए। बल्ले के अंदरूनी हिस्सा लेकर गेंद गई है फाइंड के क्षेत्र में, दुगनी जोड़ने की कोशिश, दुगनी जोड़ी गई है और थ्रो, लेकिन रोक दिया गेंद को। 2 रनों के सहारे टोटल हो गई है 39। अब पूरे 30 रन जरूरी जीत के लिए। काफी शानदार लाजवाब प्रतियोगिता आयोजित की गई है अखिल गोवा क्षत्रिय पागी समाज संगठन की ओर से। हम एक पागी होने के नाते हमारा भी एक काम बनता है यहां बैठना, लोगों को आवाज देना। और इस बार शानदार गेंदबाजी की गई है नीलेश द्वारा। भले ही डॉट के तौर पर गेंद चली गई है, शानदार गेंद मानी जाएगी है नीलेश की। तो हल्की सी अपील जरूर की गई थी, लेकिन कोई असर नहीं अंपायरों पे। एक बेहतरीन क्रिकेटर, यक्ष क्रिकेटर सर्वानंद काणकोणकर हमारे समाज बांधव कोरगांवकर का साथ देते हुए, अंपायरिंग करते हुए। हल्के हाथों से खेला जरूर है दैवेश ने सिंगल के लिए। सिंगल के साथ टोटल हो गई है 40 रन। 29 अभी भी और रन जरूरी है जीत के लिए। हवा में तैरती हुई गेंद डीप स्केल के क्षेत्र में लपक नहीं सके, कोशिश काफी बढ़िया रही फील्डर की। और दुगनी जोड़ने की कोशिश में बाबलेश रन आउट हो गए हैं। टोटल स्कोर सिंगल के सहारे हो गया है 41। 28 और रन जरूरी जीत के लिए। पूरी कमान इस प्रतियोगिता की संभाली है सर्वानंद काणकोणकर ने। सर्वानंद के साथी यहां काफी जुड़े हुए हैं। अभिनंदन करना चाहूंगा सर्वानंद काणकोणकर आपका, आपने गोवा के लिए अंडर 22 भी खेली है। उठाया स्ट्रोक,
सीधे फील्डर के हाथ में थमा और इसी के साथ लगातार दूसरी विकेट यहां जाती हुई। अभी अभी आए थे, पहली गेंद फेस कर रहे थे, लेकिन बाउंड्री के बाहर। बैट्समैन नेम प्लीज। विदेश अभी पहली गेंद फेस कर रहे थे, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन बाउंड्री के बाहर नहीं भेज पाए। आउट होकर पेविलियन में जाने की कोशिश करते हुए और शानदार गेंदबाजी निभाई है गेंदबाज ने, नीलेश ने। पागी समाज बांधव काफी दूर दूर से यहां इस प्रतियोगिता के लिए आ गए हैं। स्कोर है 41, 28 रन जरूरी है जीत के लिए। न्यू बैट्समैन प्लीज। नए बल्लेबाज फिलहाल नो स्ट्राइकिंग एंड पे रहने की कोशिश करेंगे। हरीश सुरेंद्र आए हैं गेंदबाजी का भार संभालने के लिए। सुरेंद्र पागी 28 रन जरूरी आखिरी 6 गेंदों में। बढ़िया स्ट्रोक, सीधे हाथ में लपक लिया कैच और बल्लेबाज को चलता किया डगआउट में। डाइविश आउट होकर डगआउट में जाने की कोशिश करते हुए। स्कोर 41 पे रुका हुआ, बचे हुए 5 गेंदों में पूरे पूरे के पूरे बड़े स्ट्रोक जरूरी है। पांच छक्के जड़ना जरूरी है, 4 छक्के और 1 चौका जरूरी है जीत के लिए। थोड़ी सी कठिनाई में आ गई है बल्लेबाजी टीम। जो हमारे वॉलेंटियर है उनसे एक गुजारिश है, उनसे एक विनती है कि बॉल जल्दी जल्द अंदर उन्हीं की ओर से आना जरूरी है, चारों ओर से। बढ़िया गेंद, शानदार गेंद सुरेंद्र की। डॉट के तौर अब बचे बचे हैं 4 गेंदें, 28 रन जरूरी जीत के लिए। 2 गेंदें सफलता के तौर पर, डॉट के तौर पर डाल चुके हैं सुरेंद्र। इस बार फुल टच में ट्राई किया, मिड लॉग ऑन के क्षेत्र में गेंद जाती हुई बाउंड्री पार कर गई है 6 रनों के लिए। 3 गेंदें 22 रन यहां जीत के लिए जरूरी है। यूवी बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रसाद तेज गेंद, रफ्तार भरी गेंद थी ये डॉट के तौर पर। यूवी इस गेंद पे कुछ नहीं कर पाए। यूवी नाम से ज्यादा जाने जाते हैं ये प्रसाद। टैप करने की कोशिश, लेकिन ज्यादा रन नहीं जोड़ पाए। सिंगल पे संतुष्ट, सिंगल के सहारे टोटल हो गई है 48 रन। जीत से काफी दूर गई है बल्लेबाजी टीम, जीत से काफी दूर गई है। भूमि पुरुष टीम है ये बल्लेबाजी करने वाली। माफ कीजिएगा, बैतूल योद्धा बल्लेबाजी टीम, बैतूल योद्धा और शानदार गेंदबाजी क्रम जारी रखा है भूमि पुरुष टीम ने, और इसी के साथ जीत प्रस्तावित की है भूमि पुरुष टीम ने। बहुत बहुत बधाई भूमि पुरुष टीम के लिए। नाउ मैच विल बी प्लेड बिटवीन